Hello students. So students, in the previous part of the video, we have studied trigonometric identities, okay? And in that trigonometric identities, we have studied mainly three identities. The first one was sine square theta plus cos square theta equal to 1. The second one was 1 plus tan square theta equal to sec square theta. And the third one was 1 plus cot square theta equal to cosec square theta, okay? And after that we had solved few examples based upon that identities, okay? So today we are going to start our exercise 8.4 from NCERT book, okay? So student, I'm thinking that you all having your NCERT book, so let's start the exercise 8.4, okay? The first question is express the trigonometric ratio sin A, sec A and tan A in terms of cot A, okay? I am going to repeat the question one more time. Express the trigonometric ratio sin A, sec A and tan A in terms of cot A. So student, this type of question I have already solved in the examples, okay? So this question you can do by yourself by seeing that method, okay? Second question, write all other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. I am repeating again. Write all the other trigonometric ratio of angle A in terms of sec A. Means there are 6 trigonometric ratio. So other one is given. Means whatever trigonometric ratio you have to write, you have to represent in terms of sec A. Sec A के terms में आपको represent करना है, okay? So basically 5 will be remaining. So that 5 means sin, cos, tan, cosec and cot will be represented in the form of sec A, okay? So I am going to write the question. See, second question is write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A, okay? In terms of sec A. So same question like first question. So see what is the method to solve this type of question. We all know that there are 6 trigonometric ratio, but we have to write the other means excluding sec A. So sec A, after excluding sec A, there will be 5 trigonometric ratio. So the first trigonometric ratio will be sin A, okay? And we have to represent this sin A in terms of sec A. So student, there is not direct relationship between sin and sec, but there is a relationship between sin and cos. That was our first identity. That was, we know now, sin square A plus cos square A equal to 1. This identity we know. So by here we can write sin square A is equal to 1 minus cos square A, or sin A is equal to under root 1 minus cos square A, okay? There is no direct relationship between sin and sec, but there is a relationship between sin and cos, so that we will use, okay? So in place of sin A, what we can write, student? We can write under root 1 minus cos square A, okay? Now this cos can be changed in terms of sec, okay? Because cos and sec are the reciprocal of each other. So if cos A can be written as 1 by sec A, so the square of cos A will also equal to the square reciprocal of sec A, okay? So this cos square A will be replaced by 1 by sec square A. अरे cos A और sec A एक दूसरे क्या होते हैं? रेसिप्रोकल. तो cos A will be equal to 1 by sec A. जब दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर दोगे तो इधर आ जाएगा cos square A और इधर आ जाएगा 1 upon sec square A. So by using that method we can write 1 minus 1 upon sec square A, ठीक है, is equal to sin A. Now you can take LCM. So when you will take LCM, student, what you will get? You will get sec square A and in the numerator sec square A minus 1, ठीक है? Now when you will take the square root of this will become only sec square A
minus 1, and in the denominator part sec a will come outside the square root bracket, because the square root of sec square a will be sec a. Sec square a is equal to sec a ka whole square. I told you yesterday that sin square a can be written as sin a ka whole square. Similarly, sec square a can be written as sec a ka whole square. So when you will take the square root of this, the square root of this cannot be done. So the square root of this can be taken. So the square root of sec square a will be sec a. So see, sin a is represented in the form of sec a. Okay. Now 1 we have represented, student. 1 we have already represented. Okay. Now if sin a you have calculated, now other one is cos a. So cos a is directly represented by sec a. That is cos a equal to 1 by sec a. So that is also converted. Similarly, next one is tan a. We have to represent all trigonometric ratio in terms of sec a. मतलब कि उसमें sec a आना चाहिए. sin a में भी sec a आया. ऐसे ही cos a तो sec a के रेसिप्रोकल होता ही है. और उसके बाद tan a को क्या लिखते हैं हम लोग? tan a को we can write sin a upon cos a. Okay, sin a upon cos a. Okay, and see, sin a की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है sec के टर्म्स में. तो sin a की वैल्यू we can put that is sec square a minus 1 upon sec a. This value we have already calculated, and cos a value is 1 by sec a. Okay, cos a value is 1 by sec a. So now student, this sec a will be cancelled. This sec a will be cancelled. What will left? Under root sec square a minus 1. Okay. Now sin, cos, tan we have already calculated. So their reciprocal we can also calculate. So cosec a, we know that cosec a is the reciprocal of 1 by sin a, and sin a value we have already known. If sin a is under root sec square a minus 1 upon sec a, then cosec a will be equal to sec a upon under root sec square a minus 1. If you have calculated the first 3 now, then you can calculate the remaining 3 also, because remaining 3 are the reciprocal of the first 3. अगर आपने sin, cos, tan निकाल लिया तो आप easily cosec a, sec a और tan a निकाल सकते हो. ठीक है. sec a को निकालेंगे नहीं हम लोग को, sec a के टर्म्स में निकालना है. और यहाँ लिखा हुआ अदर मतलब इसको छोड़ के बाकी सबको sec a के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है. तो sin को रिप्रेजेंट कर दिया, cos को कर दिया, tan को कर दिया, cosec को कर दिया. अब cot बचा. cot a is the reciprocal of what? tan a. And if tan a is equal to under root sec square a minus 1, then cot a is equal to 1 by under root sec square a minus 1. So this is the solution of second question, that we have represented all other trigonometric ratio in terms of sec a. ऐसा कुछ भी आ सकता है, ऐसे ये भी बोला जा सकता है कि represent all other trigonometric ratio in terms of cos a. तो cos a को छोड़ के जितने भी पांचों की पांचों बच रहे हैं उनको आपको cos के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है. तो ऐसे ही करोगे आप. And this question always comes in the examination of 3 marks, and it is very important. So I thought I should tell you. So I hope it is clear to you. So please note down it. Okay. Now student, the third question of your exercise 8.4 is that evaluate, means you have to find the value. Okay. So there is 2 parts. The first part I have written, that is sin square 63 degree plus sin square 27 degree divided by cos square 17 degree plus cos square 73 degree. So now student, how will you solve? So student, see, in the numerator and the denominator the square of trigonometric ratio is given, means here is also sin square is given, here is also cos square and cos square is given. Okay, but we have studied the identity in that manner, that is sin square theta plus cos square theta equal to 1, means the sin square of any angle and the cos square of the same angle and their sum is equal to 1. So first thing is that there is a relationship between sin and cos.
and see in the numerator sin is given and in the denominator cos is given. So what we will do, we will change any of one of these two into cos, because sin is given, so we need to convert any sin into cos. जैसे हमने पढ़ा है फॉर्मूला साइन और कॉस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और थीटा दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ऊपर भी साइन आया है, नीचे भी कॉस आया है, तो आपको करना क्या है, ऊपर दो साइन दिया है ना, तो उसमें से एक साइन को आप कॉस में चेंज कर दो। सिमिलरली नीचे दो कॉस दिया हुआ है, तो उसमें एक कॉस को साइन में चेंज कर दो, तो क्योंकि तभी हम लोग ये आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली साइन में कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, साइन और कॉस में होती है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों एंगल को आप ऐड करोगे स्टूडेंट सी, 63 एंड 27, तो कितना आएगा 90। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, इन दोनों साइन को में से किसी एक को कॉस में चेंज कर दो। ये साइन स्क्वायर 63 है और ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, तो या तो इसको चेंज कर दो कॉस में, या तो इसको चेंज कर दो कॉस में। तो अच्छा देखो मैंने आपको बताया है ना, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये मैंने बताया है कि नहीं, ठीक है। तो अगर दोनों, अब देखो उसके बाद मैं बताता हूं, एक काम करते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं, दैट इज साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर ले सकते हैं। ये मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, लेकिन मैंने समझाने को बताया है। और ये देखो, ये है cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos 73 डिग्री का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब नाउ सी, इट इज साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और यहां पे मैंने चेंज कर दिया ये फॉर्मूला का यूज करके, साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा ना, तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर cos 90 माइनस 27 डिग्री, और इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर, एंड सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर cos स्क्वायर 17 प्लस इसको ले सकते हैं साइन 90 माइनस 73 डिग्री का होल स्क्वायर। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू, बिकॉज साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा और cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, both we know. Okay, so now see, it will become only sin square 63 degree, and see cos 90 minus 27, 90 minus 27 will become cos 63 degree का whole square, okay, divided by cos square 17 degree plus, see sin 90 minus 73 will become sin 17 degree का whole square, okay. So now from here we can write sin square 63 degree plus, and see cos 63 degree का square can be written as cos square 63 degree, okay. सो इस स्टेप के बाद स्टूडेंट आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे, लेकिन ये समझाना जरूरी था आपको, ओके। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 17 डिग्री। सी, अब देखो न्यूमरेटर में भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बन रहा है, और डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बन रहा है, ठीक है। अब देखो हम यहां पर अब अप्लाई कर सकते हैं कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सी आइडेंटिटी, पहली वाली आइडेंटिटी। हम जानते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दिस वी नो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या इसको ऐसे लिख सकते हो ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वी नो दैट। तो ये आइडेंटिटी तभी ट्रू होती है जब दोनों का एंगल सेम होता है। तो देखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 63 डिग्री, this is forming an identity, so its value will become 1. Similarly cos square 17 degree plus sin square 17 degree, its value is also 1, so 1 by 1 equal to 1, okay. So the answer of first part will be 1. देखो आप चाहते ना तो इसको ऐसे लिख सकते थे स्टूडेंट, आप डायरेक्टली अगर ऐसे दिया हो ना sin स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्यों ऐसे लिख सकते हैं हम लोग स्टूडेंट,
हम लोग क्यों इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो कैसे लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं ना कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, दिस वी नो दैट। अगर दोनों साइड का स्क्वायरिंग करोगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर, और इस साइड आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन साइन थीटा का स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, और cos 90 माइनस थीटा का स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो आप चाहते तो ये ब्रैकेट नहीं लिखने की जरूरत थी, आप ऐसे भी लिख सकते थे, तो मैंने ये समझाने के लिए बताया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अदरवाइज यू कैन राइट डायरेक्टली साइन स्क्वायर 27 को आप लिख सकते थे cos स्क्वायर 90 माइनस 27। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, बस ये इससे करने से ये होगा कि आपका एक दो स्टेप बढ़ जाएगा, अदरवाइज आंसर विल कम सेम। ओके, सो इससे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा होता है, वी ऑल नो दैट। दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो इस साइड आ जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, और आरएचएस साइड आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। तो फिर जब इसको सही से लिखोगे तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। बस वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और हो जाएगा। अब मैं यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। बस आपको देखना क्या है कि आपको बस ये सोचना है कौन सी आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई हो सकती है। ओके, विच आइडेंटिटी इज सुटेबल फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर ये चीज आ गई तो ये आराम से हो जाएगा। ओके, सो कंप्लीट इट। Now student, the second part of question number 3 is that sin 25 degree cos 65 degree plus cos 25 degree sin 65 degree. Okay, so how we will solve this question? So first you think sin cos sin means in both terms sin cos is coming and their angle is 25 65 25 65. Now see student, when we will add these two angles, that is 25 and 65, we can see their sum is equal to 90 degree, so we can apply the concept of complementary angles. Okay, so now see, in both terms sin cos is coming. Okay, so what we will do in first term, what we will do कि फर्स्ट टर्म को या तो cos स्क्वायर समथिंग में चेंज कर दे या sin स्क्वायर समथिंग में चेंज कर दे। अब देखो sin cos दिया हुआ है ना, तो हमको इसको क्या बनाना है, sin स्क्वायर। ठीक है, और ये cos sin दिया हुआ है तो इसको बनाना है cos स्क्वायर, तभी तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बनेगा। एक टर्म में sin स्क्वायर आना चाहिए, दूसरे टर्म में cos स्क्वायर आना चाहिए। तो ये आपकी मर्जी है कौन से टर्म को आप sin स्क्वायर बनाना चाहते हो और कौन से टर्म को cos स्क्वायर बनाना चाहते हो। तो नाउ सी, मैं सपोज पहले वाले टर्म को sin स्क्वायर में चेंज करना चाह रहा हूं और दूसरे वाले को cos स्क्वायर में। तो अब देखो ये हो गया sin 25, इसको मैंने sin 25 ही रहने दिया और इसको यूज किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी, दैट इज sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा एंड cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। तो cos थीटा है ये, तो cos को अगर sin में चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं sin 90 माइनस 65 डिग्री। ठीक है, तो पहले वाले टर्म में केवल sin आ गया। आपके ऊपर है, या तो पहले टर्म को आप cos स्क्वायर में चेंज कर दो, दूसरे टर्म को sin स्क्वायर में, या पहले टर्म को sin स्क्वायर थीटा में और दूसरे टर्म को cos स्क्वायर थीटा में। तो मैं पहले टर्म को sin स्क्वायर थीटा में चेंज कर रहा हूं, तो sin में चेंज करने के लिए पहला वाला तो sin में है ही, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। दूसरे वाले cos को sin में चेंज कर दिया तो cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा होता है, तो cos 65 इज इक्वल टू sin 90 माइनस 65 प्लस अब इस वाले टर्म को cos में चेंज करना है, क्योंकि हमको पता है कि हमको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, तो हमको ऐसा बनाना पड़ेगा ना, हमको पहले इस फॉर्म को बनाना पड़ेगा ना कि एक तरफ sin स्क्वायर आना चाहिए, दूसरी तरफ cos स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको मैंने cos 25 ही रहने दिया और इसको मैंने चेंज कर दिया sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस 65। ठीक है, देख रहे हो ना स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट कितना यूज हो रहा है। ये वहां यूज होता है जब दोनों का सम, एंगल्स का सम 90 के इक्वल आता है। दो एंगल का सम अगर 90 के इक्वल आ रहा है तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। तो मैंने किया, पहले वाले टर्म में केवल sin, दूसरे वाले टर्म में केवल cos। नाउ सी, एंड बिटवीन देम मल्टीप्लाई साइन इज देयर। ओके, डोंट फॉरगेट, बिटवीन दीज टू मल्टीप्लाई साइन इज देयर। So see, it is sin 25 degree and it will become also sin 25 because 90 minus 65 is equal to 25 only.
Similarly, cos 25 and it is also become cos 25. Now see, sin 25 into sin 25, अगर कोई साइन नहीं है दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है. तो sin 25 एंड sin 25 आपको भी पता है ना, x into x is equal to x square. तो sin 25 into sin 25 will be equal to sin square 25. ठीक है. Similarly, cos 25 into cos 25 it will become cos square 25. ठीक है. Now it is forming sin square theta plus cos square theta. मैंने आपको बताया था ना, इस फॉर्मूले में थीटा कहां से कहां लाई करता है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक. और देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, 25. तो हाँ, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं. sin square theta plus cos square theta equal to 1 होता है. तो similarly sin square 25 plus cos square 25 equal to 1. Okay, so the answer of second part is 1. So note down it. So student, by that way we have completed question number 3. So I hope it is clear to you. So now question number 4. I will solve only one or two part of question number 4. Okay. Remaining you will do by yourself. So now what is question number 4? Question number 4 is choose the correct option and justify your choice. ठीक है. तो first part is that the first part, this type of question comes in the board examination because the pattern of board examination has been changed and there is also multiple choice type question. So this type of question can come in your exam. So first question is 9 sec square a minus 9 tan square a equal to what. ठीक है. 4 options are given and you have to choose any one of them. So we will solve it. See, 9 sec square a minus 9 tan square a. So first what you do, you can take common 9. So 9 will be common. So in the bracket what will come? Sec square a minus tan square a. ठीक है. अब अगर आपने आइडेंटिटी ढंग से पढ़ी है स्टूडेंट, तो sec square a minus tan square a, sec और tan में एक आइडेंटिटी होती है, मैंने आपको बताया था. 1 plus tan square a equal to sec square a होता है. ठीक है. 1 plus tan square a equal to sec square a होता है. अच्छा, अगर मैं इस tan square a को इधर ले जाऊं तो 1 equal to क्या आएगा, sec square a minus tan square a होगा. या इसको ऐसे लिखें, sec square a minus tan square a equal to 1. इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. सेकेंड आइडेंटिटी तो हम लोग ये पढ़े हैं ना, 1 plus tan square a equal to sec square a. लेकिन आपको इस तरह भी याद करना है, दैट इज sec square a minus tan square a equal to 1. ठीक है. तो देखो यहाँ पे यही तो आ रहा है, sec square a minus tan square a, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1. सो 9 into 1 will be equal to 9. ठीक है. So the answer of first part is 9. So which option will be correct? Option B will be correct. ठीक है. I hope it is clear to you. So please note down it. By this way also you have to learn. So I am going to solve the second part. The second part of question number 4. So what is question number 4? Second part. The second part is 1 plus tan theta plus sec theta and 1 plus cot theta minus cosec theta. What will be the value of that? Okay, इसकी वैल्यू बतानी है आपको. So see student, first what we will take, we will do, see it is given that 1 plus tan theta plus sec theta in one bracket and in the second bracket 1 plus cot theta minus cosec theta. Okay, so if you don't know nothing, तो इसको आप सिंपल फॉर्म में चेंज कर लो. जिसको जिसको आप ओरिजिनल फॉर्म में चेंज कर सकते हो उसमें आप चेंज कर लो. ठीक है. तो सी tan थीटा को क्या ले सकते हैं, साइन और कॉस में.
सबको आप साइन और कॉस में चेंज कर दो, तो टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड इट इज 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, इन द सेकेंड ब्रैकेट cot थीटा विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो अगर tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा है तो cot थीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। ठीक है, नाउ टेक द एलसीएम, सो इन दिस ब्रैकेट एलसीएम विल बी cos थीटा, सो हियर इट विल कम cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 in first bracket, and in second bracket sin theta will be the LCM, so here will come sin theta see student, here is plus sign, okay, and cos theta minus 1 in first bracket cos theta plus sin theta plus 1 upon cos theta, and the second bracket sin theta plus cos theta minus 1 upon sin theta। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, दोनों पार्ट में, दोनों ब्रैकेट में न्यूमरेटर में sin थीटा और cos थीटा है। ठीक है, न्यूमरेटर में sin थीटा और cos थीटा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम sin थीटा और cos थीटा को टुगेदर लिख दे रहे हैं, तो sin थीटा प्लस cos थीटा विल बी टुगेदर एंड प्लस 1 अपॉन cos थीटा, एंड सिमिलरली ये तो है ही sin थीटा प्लस cos थीटा को एक ब्रैकेट साथ और माइनस 1 अपॉन sin थीटा। ठीक है, नाउ सी स्टूडेंट, इन द न्यूमरेटर ऑफ बोथ ब्रैकेट दिस पार्ट इज कॉमन, तो अगर मैं इसको एज ओनली वन कंसीडर करूं, सपोज इसके जगह पे कोई और वेरिएबल होता a होता, तो sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 एंड sin थीटा प्लस cos थीटा a मान लूं, तो क्या होता, अगर मैं sin थीटा प्लस cos थीटा की जगह a मान लेता तो इस वाले ब्रैकेट में क्या आता, a प्लस 1 अपॉन sin cos थीटा, और इस वाले ब्रैकेट में आता a माइनस 1 अपॉन cos थीटा। तो ध्यान दो, a प्लस 1 और a माइनस 1, इट इज फॉर्मिंग अ फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। न्यूमरेटर ऑफ बोथ पार्ट इज फॉर्मिंग द फॉर्मूला ऑफ, न्यूमरेटर ऑफ बोथ पार्ट इज फॉर्मिंग अ फॉर्मूला ऑफ, वी नो ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। So see, in place of a sin theta plus cos theta is here, in place of b 1 is here, so we can apply this identity. This identity is very beneficial for solving trigonometric identities, okay? So by doing this formula, by using this formula we can write sin theta plus cos theta का whole square minus 1 का square divided by sin theta cos theta, because denominator will be multiplied to each other। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला फॉर्म होगा। देखो sin थीटा प्लस cos थीटा को अगर एक वेरिएबल मान लो आप, अगर आप इसको x मान लेते पूरे को, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू x, तो इस ब्रैकेट में आता x प्लस 1 और इस ब्रैकेट में आता x माइनस 1, सो x प्लस 1 एंड x माइनस 1 विल बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। इट इज क्लियर टू यू, दिस फॉर्मूला इज फॉर्मिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। So I have applied that identity, so I can write sin theta plus cos theta का whole square minus 1 का square upon sin theta cos theta। Now this form, this sin theta plus cos theta का whole square can be expanded in the formula of a plus b whole square। So see, I am expanding it, so it will come sin square theta, अरे a plus b का whole square क्या होता है, a square plus b square plus 2ab, तो जब इसको एक्सपेंड करोगे तो पहले भी जाएगा a square यानी कि sin square theta प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई sin थीटा cos थीटा। ठीक है, इसको a प्लस b पे एक्सपेंड कर दिया और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। अब ध्यान दो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, सो इन प्लेस ऑफ दैट 1 वी कैन राइट प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई sin थीटा cos थीटा। Now 1 is cancelled, so what is left, 2 sin theta cos theta divided by sin theta cos theta, this will be cancelled, so what will come, 2। So the answer of second part will be C, that is 2, answer will be 2।
तो इसी तरह स्टूडेंट आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट भी करने हैं, जैसे मैंने सॉल्व किया, सबको सॉल्व करके लाना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सो फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने कर दिया, थर्ड एंड फोर्थ यू विल डू बाय योरसेल्फ, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू, सो प्लीज नोट डाउन इट, ओके। Now student, after question number 4, the remaining two parts of question number 4 that you will solve. So I am going to solve question number 5. So what is question number 5? Prove the following identities where the angle involved are acute angle for which the expressions are defined, okay. You have to prove whatever parts are given in question number 5 that you have to prove, okay. See, there is one expression is given in the first part of question number 5, that is cosec theta minus cos theta का whole square equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें एक साइड LHS है और एक साइड RHS है, तो आपको इसको इसके बराबर दिखाना है, ठीक है। तो आप प्रूव कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? आप क्या करोगे, या तो कोई साइड ले लोगे, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे, या तो आप राइट हैंड साइड ले लोगे, उसको सॉल्व करोगे। अगर सॉल्व करने पर वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो इसका मतलब दैट इज प्रूव्ड। या तो आप लेफ्ट हैंड साइड लो, या तो आप राइट हैंड साइड लो, कोई भी एक साइड ले सकते हो, उसको सॉल्व करो और दूसरे साइड के इक्वल दिखा दो। अगर इक्वल आ जाए तो आइडेंटिटी प्रूव हो गई। सेकंड क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे तो फाइनल पॉइंट पे वो RHS के बराबर नहीं दिखेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इक्वल है कि नहीं। तो उस केस में क्या करना होता है कि आपको RHS भी सॉल्व करना होता है और फिर उसको भी सॉल्व करके दिखाना होता है कि क्या वो LHS के बराबर आ रहा है या नहीं, ठीक है। ऐसा बहुत कम क्वेश्चंस में होता है। होता क्या है कि आपको एक साइड लेना है, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड लो चाहे आप राइट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो इसका मतलब प्रूव्ड हो गया, ठीक है। या आप RHS ले सकते हो, अगर आप राइट हैंड साइड लिए हो तो उसको सॉल्व करो और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर दिखा दो, मतलब कि कोई एक साइड लेना है और दूसरे के इक्वल दिखा देना है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है सेकंड केस में कि जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लोगे पूरा तो वो RHS के बराबर दिखता नहीं है, बराबर नहीं आता है, तो वैसे केस में आपको दूसरी साइड को भी सॉल्व करना पड़ता है और उसको भी दिखाना होता है कि उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रही है या नहीं। तो वो जब आएगा तो मैं बता दूंगा। तो पहला चीज क्या है कि हमको इसके इक्वल इसको प्रूव करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LHS, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो करे क्या है स्टूडेंट, इसको हम लोग साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। सबसे इजी यही होता है, अगर आपको कोसेक कॉट दिखे, सेक दिखे या टेन दिखे तो इसको आप क्या करो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पहले इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, क्योंकि उससे सॉल्व करना आसान होता है। तो मैंने कोसेक थीटा को क्या लिखा, कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो आई कैन राइट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, ओके, माइनस कॉट थीटा। टेन थीटा क्या होता है स्टूडेंट, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ दैट आई कैन राइट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन, ठीक है। अब क्या करो, आप अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, तो एलसीएम विल कम साइन थीटा ओनली, तो साइन थीटा, नाउ it will become 1, it will become cos theta, so 1 minus cos theta upon sin theta का whole square, ठीक है। this comes, okay, very simple question it is, just see the steps, just I am following the basic concept, nothing else। now what you do, 1 minus cos theta upon sin theta का whole square, तो इसको अलग अलग स्क्वायर करके लिख सकते हैं हम लोग, so it will become 1 minus cos theta का whole square upon sin theta का square, ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसको ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंड हो जाएगा, तो जब एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1, सॉरी स्टूडेंट अब क्या करो, इसको ऐसे रहने दो, अभी इसको ऐसे रहने दो। आपने इसको ऐसे किया, इसको आपने ऐसे लिखा क्योंकि मुझे ऊपर क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, तो मैं ऊपर वाले को एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट, एक्सपेंड करने से कोई फायदा नहीं है, अगर फायदा होता तो मैं कर देता। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान दो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना,
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू होगी यहाँ से, या आपको आना या प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको ओरिजिनल याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख रहा हूं, इसके प्लेस से मैं लिख रहा हूं, ऊपर तो सेम ही है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे मैं लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऊपर सेम चीज है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आई हैव रिटन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम ये लिख सकते हैं, ऊपर तो सेम ही रहने दो अभी फिलहाल, और नीचे लिख सकते हो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 तो क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान दो स्टूडेंट, ये सब चीजें आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्लियर होगा, एग्जैक्ट से नहीं आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ऊपर को सेम ही रहने दो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे देखो इट इज फॉर्मिंग अ फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इन प्लेस ऑफ a 1 इज हियर, इन प्लेस ऑफ b cos थीटा इज हियर। सो इसको जब एक्सपेंड करोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा आएगा, और ब्रैकेट में मेंशन कर देना we know that a square minus b square equal to a plus b and a minus b, we know that, ठीक है। so see after solving this we got 1 minus cos theta का whole square divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। अब देखो ऊपर है 1 minus cos theta का whole square और नीचे है 1 minus cos theta। अगर स्टूडेंट आपके पास कुछ ऐसा होता है x square by x, तो क्या करते हो, जब x स्क्वायर बाई x होता है क्या करते हो, स्क्वायर को x से कैंसिल कर देते हो, x बचता है। तो ऐसे ही करना है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और व्हाट विल लेफ्ट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो हम लोगों ने LHS को सॉल्व किया तो RHS के बराबर आया, which is equal to RHS, so we can say LHS equal to RHS, so it is proved। एक चीज और, ये चीज लिखना मत आप, ये मैंने समझाने के लिए बताया है, ठीक है। हाँ ये लिख सकते हो, ये मत लिखना, ये मैंने समझाने के लिए बताया है कि जब ऐसा होता है तो आप इसको कैंसिल कर देते हो। वैसे ही आपने 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल किया तो इसका स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, और क्या बचा केवल 1 माइनस कॉस थीटा इन द न्यूमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस थीटा। तो बाय सॉल्विंग LHS वी गॉट RHS। LHS को सॉल्व करने के बाद जो हम लोग लास्ट में आया वो क्या आ गया, RHS के बराबर ही आया। यहाँ पे देखा तो जैसे ही यहाँ पर आया मैंने देखा कि ये तो RHS के बराबर है, तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बस आपको LHS को RHS के बराबर या RHS को LHS के बराबर एक साइड को लो और दूसरे के इक्वल दिखा दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो बाय दैट वे वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। देयर आर मेनी मोर क्वेश्चन इन द क्वेश्चन नंबर 5 which we will discuss. We will discuss student almost all, okay, so that your doubt is clear. One more thing student, I want to tell you that whenever you are going to solve trigonometric identities you need practice, you need lot of practice। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये नहीं समझ में आएगा आपको कि अरे चलो 3-4 क्वेश्चन कर लिया हो गया, no, you have to solve at least 20 to 30 question to get perfect in this type of question, okay। परफेक्शन आपका तभी आएगा जब आप कम से कम 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लगा लोगे। जब आप 15-20 क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको खुद से आइडिया होने लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं। शुरू के 2-3 क्वेश्चन में बिल्कुल समझ में नहीं आता है। सो इफ इट इज नॉट क्लियर टू यू, डोंट पैनिक, वी विल सॉल्व मेनी मोर क्वेश्चन सो दैट योर डाउट विल बी क्लियर, ओके। सो व्हाटएवर थिंग्स आर रिमेनिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो टिल देन स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।